د جمرود تحصیل اوسیدونکی یم، ما نامه نیکمل ده، خو زه په 1988 کې برتي شوی یم په ریلوے کې. بلډینګ سن 1922 کې تعمیر یې شوی دی. په 1922 کې دا بلډینګ جوړ شوی دی، نو تقریبا 100 کال یې برابر شول. نو بلډینګ هم تاسو ولدلو زیات کمزوری دی، ځکه یې 100 کاله یې وخت کړ. او کمرې دي موږ سره، یوه غټه برانډه ده، یوه مسافرخانه ده. سفاري ټرین چې دلته راتللو نو دلته ټول د یورپ خلک راتلل. پکې مشهور یو هغه غټ شخصیت هغه راغلی و، بل د حالات وسره آباد و، د علاقه وسره آباد و. سفاري ټرین چې دلته چلیدلو، او دا لینډ چې تیر دی د انګریزانو یې وختو تیر دی، د انګریز په دور کې تیر دی، او ډېر په ښه پوزیشن دلته ریل چلیدلو. دا طوفاني باران چې راغی په 2007 کې، نو موږ لینډ ته زیات نسخان ورسولو چې پکې موږ پلونه هم غورځېدلي دي، او د موږ ټریک ته هم هغه نسخان رسېدلی دی. میرا نام شہزاد آفریدی ہے، میں ضلع خیبر جمرود علاقہ نئی آبادی سے تعلق رکھتا ہوں، صحافی ہوں. دو 2018 سے پہلے یہ خیبر ایجنسی کے نام سے پکارا جاتا تھا، ایجنسی تھا. 2018 میں جب مرجر ہوئی تو یہ ضلع ڈکلیئر کر دی گئی، ابھی ضلع خیبر ہے. ضلع خیبر میں بڑے جو 3 تحصیلیں ہیں، اس میں ایک باڑہ ہے، ایک جمرود ہے اور ایک لنڈی کوتل ہے. پھر اس میں چھوٹے 3 تحصیلیں ہیں، ایک تیرا ہے، ایک تورخم ہے اور ایک جمرود کے ساتھ جو جڑا ہوا ہے وہ تحصیل ملاگوری ہے. پہلے تو جب بھی آپ ضلع پشاور سے ڈسٹرکٹ خیبر کی طرف انٹر ہو رہے ہیں تو گیٹ وے میں باب خیبر ہے، جو 1963 میں فیلڈ مارشل ایوب خان نے اس کا باقاعدہ افتتاح کیا تھا. اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو پھر شگئی فورٹ بالکل تاریخی حیثیت رکھتا ہے، وہ بھی سکھ دور کا ہے. انگریز دور کا ریلوے ٹریک جو موجود ہیں وہ انتہائی پرانی ہے. میرا نام راحت شینواری ہے اور میرا تعلق قبائلی اضلاع خیبر سے ہے، جو تورخم کے ساتھ کنیکٹڈ ہے تھرو خیبر پاس. بنیادی طور میڈیا کا میں ایک سٹارٹ اپ ہوا اور خیبر پاس کی ٹورزم پہ کام کر رہا ہوں. پوری دنیا کو معلوم ہے کہ خیبر پاس الحمدللہ ہسٹوریکل پرسپیکٹو پہ بہت رچ ہمارے سورسز ہم رکھتے ہیں، جس میں سب سے پہلے میں نام ذکر کروں گا خیبر پاس کا جو تاریخی ریلوے ٹریک ہے جو خیبر اسٹیم سفاری کے نام سے مشہور ہے. اس کے بعد آپ کو خیبر پاس کا سب سے تنگ ترین علاقہ ملے گا علی مسجد. تاریخ بتاتی ہے کہ سکندر اعظم سے لے کے محمود غزنوی تک بہت سارے جو ہمارے واریئرز یہاں سے گزرے. پھر لنڈی کوتل جب آپ داخل ہوتے ہو تو یہاں پہ آپ کو برٹش دور کے وہ آثار نظر آئیں گے جو شاید ہی کسی دوسری قبائلی اضلاع میں ہو. اس کے علاوہ یہاں پہ مقامی جو سویلائزیشن ہے وچینے چیک پوسٹ میں، وہ تیمور لنگ کا جو سلاٹر ہاؤس ہے وہ ایک اہمیت رکھتا ہے. اشوکا کا اسٹوپ آپ کو یہاں پہ ملے گا. خیبر اسٹیم سفاری، انگریزوں کے آثار، جو قدیم بدھسٹ ہیں ان کے آثار، اور 4 سویلائزیشن کا مرکب ہے خیبر پاس. میں ایک ریٹائرڈ حوالدار زعفران آفریدی ہوں. میں FR پشاور کا رہنے والا ہوں اور 2016 میں نے اس مشنی پوسٹ کے اوپر دوبارہ ڈیوٹی جوائن کی ہے. مشنی پوسٹ جو ہیں یہ برٹش نے بنائی ہیں 1920 میں. یہ ان کا ایک آبزرور پوسٹ تھا.
मिशनी पोस्ट से हवाई मंजर जो है पाक अफगान बॉर्डर, काबल रिवर, क्वीन दुकेश वाला सिलसिला साफ नजर आता है। ये जितनी भी जो बॉर्डर के ऊपर जो पोस्टें, पहले टाइम में तो एक शीशा सिस्टम होता था सिग्नल, वही पोस्टों से इसको सिग्नल आता था और इससे फिर बैक हमारे जो हेडक्वार्टर खैबर राइफल है, जो टॉप की ऊपर जो पोस्ट है उनको ये सिग्नल देता था। बिल्कुल ये टॉप के ऊपर जो है ये कंडर नुमा टेप जो किला है, ये तैमूर लंग का जेल खाना और फांसी गार था। ये जो हमारी तरफ जो स्लोप है ये तकरीबन 45 डिग्री ज़ाय पर ऐसा स्लोप बना हुआ है और ये एक मुकम्मल एक टनल है और इस टनल के अंदर उन्होंने मुख्तलिफ किस्म की कटर्स और ब्लेड लगाए थे। जब वो किसी बंदे को सजाए मौत दे तो बंदे को पहला टाइट बांध लेता और बाद में अंदर की तरफ इसको फेंक देता। तो सर ये वो खुद ब खुद रूलिंग की शक्ल में आता। जब बंदा आखिरी एंड पे बंदा पहुंच जाए टुकड़ों की शक्ल में सर बाहर निकलता था या कीमी की शक्ल में सर बाहर निकलता था। ये सर 1398 बना हुआ सर। खैबर पास का जो रेलवे ट्रैक है वो दुनिया में आपको बहुत से रेलवे ट्रैक नजर आएंगे और रेलवे ट्रैक का होना कोई अनोखी बात नहीं है, लेकिन खैबर पास की जो रेलवे ट्रैक है उनको मेरे ख्याल में एक अजूबे की हैसियत हासिल है 3 वजूहात की बिना पे। नंबर 1 के लंडी कोतल से पेशावर का जो 58 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक है, दुनिया में शायद ही कोई ऐसा रेलवे ट्रैक हो जो एयरपोर्ट से निकल कर जाता है। हमारा रेलवे ट्रैक पेशावर के बादशाह खान एयरपोर्ट से निकल कर रनवे पे होकर लंडी कोतल आ जाता है। पेशावर से अफगान बॉर्डर तक रेलवे लाइन के लिए 2 रास्तों का इंतखाब किया था। नंबर 1 खैबर पास रोड, नंबर 2 वादी काबल रिवर रोड। लेकिन इन तजवीज में खैबर पास को फौकियत दी गई। इस रेलवे लाइन का मकसद अफगानिस्तान में उठती हुई बगावत को दबाना था और अफगानिस्तान तक रसाई हासिल करने के लिए तामीर किया गया। इस रेलवे लाइन निजाम का पहला मरहला पेशावर से जमरोद तक 1899 में मंजूर हुआ और जून 1901 को मुकम्मल हुआ। मसूरा रेलवे लाइन जमरोद से लंडी कोतल तक नवंबर 1925 में मुकम्मल हुआ और बाद में अप्रैल 1924 को लंडी खाने तक तोसी कर दी गई। लंडी खाना रेलवे स्टेशन को फिर 1932 में बंद कर दिया गया। मौजूदा रेलवे लाइन में टोटल 92 ब्रिजेस और 34 टनल हैं। 34 टनल को टोटल मिला के इसमें टोटल फासला 5 किलोमीटर। तो सर इस रेलवे ट्रैक पर पेशावर से जमरोद तक तकरीबन 6 लाख पाउंड स्टर्लिंग खर्चा बताया जाता है और जमरोद से लंडी खाना रेलवे स्टेशन तक मुख्तलिफ खर्चा बताए। फर्स्ट जराई के मुताबिक 28 से 32 मिलियन पाउंड, नंबर 2 जराई के मुताबिक 02 मिलियन पाउंड, नंबर 3 जराई के मुताबिक 216 मिलियन पाउंड। सफारी ट्रेन चलती रही 2007 तक लंडी कोतल तक। फिर 28 जून 2007 में एक सैलाब आया था जिससे काफी नुकसान किया था, तो उसी टाइम से रेलवे ट्रैक काबिल इस्तेमाल नहीं। खैबर स्टीम सफारी की सबसे बड़ी अमेजिंग बात ये थी कि यूरोप और अमेरिका के विजिटर्स जो टूरिस्ट है वो खैबर स्टीम सफारी में लंडी कोतल आया करते थे। अब हम 9/11 के बाद मुसलसल इस कोशिश में है कि दुनिया को हम सॉफ्ट इमेज दिखा दे कि फाटा के लोग पीसफुल है, कबायली जो अजला के लोग है वो अमन पसंद है, वी आर नॉट फंडामेंटलिस्ट। लेकिन जब वो अंग्रेज आया करते थे तो हमें इन चीजों की जरूरत ही नहीं थी। वो खुद ही अपने साथ एक सॉफ्ट इमेज लेके जाते थे जिसका हमें बहुत पैसा मिलता था मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स की शक्ल में, जिसका हमें बहुत फायदा मिलता था गवर्नमेंट को ग्रांट की शक्ल में, और हमें जो जंगे खाना जंगे है उनसे निजात मिलती थी। दूसरी अहम वजह उनकी ये थी कि बाजारों में ये लोग आसानी से घूमते थे, शॉपिंग किया करते थे, हमारे मार्केट की आमदन ठीक थी, हमारा मजदूर खुशहाल था, हमारे कल्चर को ये रिप्रेजेंट करते, लोगों से घुल मिल जाते और दुनिया को ये मैसेज जाता कि फाटा के लोग बहुत ही पीसफुल है। तीसरा उनका बुनियादी मकसद और फायदा ये था कि हमारा जो रिच कल्चर है वो पूरी दुनिया को वो लोग मुफ्त में दिखा रहे थे और हमें फायदे हो रहे थे। 2007-8 में इस रीजन में बहुत ही खतरनाक फ्लड आया था जिसने हजारों लोगों के घरों को उजाड़ कर रख दिया, सैकड़ों लोगों को मौत की वादी में धकेल दिया। वहां पर खैबर पास का जो रेलवे ट्रैक आपको नजर आ रहा है इसको भी काफी नुकसान पहुंचा। कुदरत की तरफ से तबाही आती है, जलजले भी आते हैं, सैलाब भी आते हैं, लेकिन उसके बाद रिहेबिलिटेशन, उनको रिकंस्ट्रक्ट करना ये इदारों का काम है। वक्तन फवक्तन वर्ल्ड बैंक ने और पाकिस्तान रेलवे ने उसमें दिलचस्पी ली, फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स तैयार हुई, लेकिन हमें वो फायदा नहीं मिल रहा था क्योंकि कबायली अजला को एक तरह से इलाका गैर कहा जा रहा था। वर्ल्ड बैंक उनको फंड करने में तैयार नहीं था, पाकिस्तान रेलवे ऑलरेडी खसारे में जा रहा था, उनके अपने रिसोर्सेज नहीं थे, इस वजह से ये ताखीर का शिकार हुआ। लेकिन जब
फाटा का खैबर पख्तूनख्वा के साथ इंजमाम हुआ, तो हमारे जो साबिका रेलवे मिनिस्टर थे शेख रशीद साहब, वो यहाँ पे आए थे और उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि आज के बाद खैबर पास का जो रेलवे ट्रैक है ये मैं जिम्मेदारी देता हूँ खैबर पख्तूनख्वा टूरिज्म डिपार्टमेंट को। तो खैबर पख्तूनख्वा टूरिज्म डिपार्टमेंट ने जिम्मेदारी ली और रिसेंट पास्ट में उनकी 2 टीम यहाँ पे आई है और इब्तिदाई जो लागत लगाई गई है 1 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस से ये ट्रैक बहाल होगा और इंशाल्लाह इन पे अनकरीब वो टूरिज्म डिपार्टमेंट कहते हैं कि काम शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान थर्ड वर्ल्ड कंट्री में आता है और कुदरत हम पे मेहरबान है। कुछ ममालिक ऐसे होते हैं जहाँ पे कुदरती वसाइल बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इज वन ऑफ देम। कि टूरिज्म हमारा इतना बड़ा सेक्टर है कि अगर हम इसको पूरी तरह यूटिलाइज करें तो हमें किसी बैरूनी एड या डोनर्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब टूरिज्म में आपने कौमी विरसे शामिल है। खैबर पास का स्टीम सफारी जो है ये कौमी विरसा है। दुनिया के टॉप टूरिस्ट जो सबसे ज्यादा यूरोप और अमेरिका से अट्रैक्ट हुए वो नॉर्दर्न एरियाज और खैबर पास के इस तारीखी रेलवे ट्रैक ने अट्रैक्ट किए। तो ये बात तो कन्फर्म है कि हमें मजीद ताखीर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हम 14 साल ताखीर का शिकार हो चुके हैं। जो ही जिस तरह हम ताखीर करेंगे तो इसकी जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो बढ़ती जाएगी और अल्टीमेटली हुकूमत को, डिपार्टमेंट को, अथॉरिटी को और महकमे को ये कंस्ट्रक्ट करने में मुश्किलात का इजाफा होगा। और जब तक मतलब इस पे तामीराती काम नहीं शुरू हो जाता तो पाकिस्तान रेलवे की ये जिम्मेदारी बनती है कि जो आप लोगों का स्टाफ पिछले 14 सालों से फारिग बैठा है, जो घर बैठ के तनख्वाहें लेते हैं, उनको मामूर करे इस पे कि जो मजीद रेलवे ट्रैक लोग उकाड़ रहे, यहाँ पे नशेई लोग आते हैं, उनको लोहे को वो तोड़ रहे, बेच रहे, तो कम से कम उनकी हिफाजतें तो करे। पाठक वाले गायब है, चौकीदार आपके गायब है, आपके रेलवे के अपनी पुलिस होते वो गायब है, जो आपके स्टेशन मास्टर है सब गायब है, जो लंडी कोतल का रेलवे स्टेशन है तबाही की तरफ लोग उसमें वॉशरूम्स उन्होंने बना रखे, गंदगी फैला रहे। तो जब तक काम नहीं होता स्टार्ट तो रेलवे की जिम्मेदारी बनती है कि इसको पब्लिक, ये तो कुदरत ने खराब किया, पब्लिक उनको खराब कर रहे, तो कम से कम पब्लिक को उनको मना तो कर सकते हैं। खैबर सफारी ट्रेन के हवाले से ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि इसको दोबारा रिस्टोर किया जा रहा है, दोबारा मुरम्मत की जा रही है इस रेलवे ट्रैक की। ये रेलवे ट्रैक जो है तुरखम से पेशावर तक है। पेशावर में एक ये रुकावट सामने आ रहा है जो हमें मालूम है, ये बचा खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट के दरमियान से ये निकला हुआ है। ये वो एक रुकावट है और इस तरह कोई सरकारी इमारतों से गुजरा हुआ है वो रुकावटें हैं। अगर वो बीच में से निकाला जाए तो इसमें और कोई इस तरह बड़ा इशू नहीं, ये बिल्कुल मुमकिन है। ये तख्ताबेग के मुकाम पर गिरा हुआ है एक बड़ा पुल, वहाँ जरूरी है और ये टनल्स में मामूली सा मुरम्मत है। 9/11 के बाद के हालात जब आप देखें तो सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा मेजर वो आ रहा है हुकूमत को, लेकिन उसका भी हल है। उसको उस पॉइंट्स पे आप टूरिस्ट को ना उतारे, उसको रेल को गुजरने दे। जैसे कि पंजाब में आपको पता है मेट्रो ऊपर से जा रही है तो हसास स्टेशन उन्होंने पर्दे लगा के उनको छुपा दिया है। सेम इज द केस विद पेशावर BRT के सदर के कैंट एरिया से गुजर कर वहाँ पे ना स्टेशन बनाए और ना कोई ऐसा पॉइंट बनाए कि जहाँ से लोग फोटोग्राफी कर सके या उनकी कोई इंस्टॉलेशन नजर आए। तो मैं समझता हूँ कि इसका आसान हल ये है कि जो हसास तरीन इलाके हैं वहाँ पे ट्रेन के स्टेशन ना बनाए जाए, वहाँ पे रिक्रिएशन सेंटर ना बनाए जाए और वहाँ पे टूरिस्ट को ना उतारा जाए। आज से 2-3 साल पहले FBR की रिपोर्ट है कि सालाना अरबों रुपए डॉलर की यहाँ पे बिजनेस हुआ करती थी जो कम होकर 20-25% तक आ गई। इसकी बुनियादी वजह यह है कि जगह जगह पे आपको पता है कि जो हमारा पाक अफगान शारा है उस पे कुछ ऐसे वाकयात हो चुके हैं कि ट्रेडर्स शाम को रात को सफर नहीं करते, मुख्तलिफ ट्राइब्स के माबेन इंटर ट्राइब कॉन्फ्लिक्ट होते हैं तो ये शाराएं हफ्तों तक बंद रहती है, धरने होते हैं, तो वहाँ पे इस तरह की वो स्मूथली उनकी फ्लो नहीं होती। लेकिन जब इस ट्रैक को ट्रेड के लिए इस्तेमाल किया जाए तो यहाँ पे आपको पता है रेलवे ट्रैक पे तो किसी ट्रक ने आना नहीं है, किसी और गाड़ी नहीं आने, तो पर्टिकुलरली इन चीज के लिए इस्तेमाल होगी तो मेरे ख्याल में वापस ये अरबों डॉलर तक पहुंच सकती है, क्योंकि एक ही लाइन होगी वहाँ पे आप बिल्कुल मालबरदार गाड़ियां चला सकते हैं और जो ट्रक पेशावर से या कराची से 7-8 दिनों में
खतरनाक रास्तों से होकर तो हम पहुंचती है। रेलवे ट्रैक की बहाली की बात मेरे ख्याल में उसमें सिर्फ घंटे लगेंगे। चढ़ाई के मकाम पर ये तारीखी स्टूपर जो है वो आपको नजर आएंगे, वो भी बिल्कुल खंडरात की शक्ल में तब्दील हो चुके हैं। अगर रिस्टोर नहीं की गई ये चीजें तो 10-15 साल बाद ये रेल पटरी नहीं होगी और ये जो स्टूबर्स हैं इनकी जो पत्थर हैं वो रास्तों में आप देखेंगे, क्योंकि ये दिन ब दिन खराब होती जा रही है इनकी हालत। नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है, नुकसान कबायली आवाम को हो रहा है। अगर रेलवे ट्रैक बन जाता है तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को टूरिज्म की मद में लाखों करोड़ रुपए का फायदा होगा। मकामी लोग खुद ही उनसे फायदा लेंगे, दुकानदारी की शक्ल में और उनके साथ रिलेशंस की शक्ल में। अगर तामीर ना हुआ तो हम दुनिया को सॉफ्ट इमेज बताते बताते थक जाएंगे। सबसे बड़ा नुकसान ये होगा। हम चाहते हैं कि खैबर स्टीम सफारी बन जाए, लोकल टूरिस्ट भी आए, नेशनल टूरिस्ट भी आए, फॉरेन टूरिस्ट भी आए, सॉफ्ट इमेज भी आए, मुल्क को भी मुनाफा हो, पब्लिक को भी मुनाफा हो, खुशहाली हो, अमन हो और लोग एक मरतबा फिर तारीख को दोहराए और खैबर स्टीम सफारी पुरपेश पहाड़ों और 34 से ज्यादा टनों में धुआं निकाल के गुजरे और पूरे दुनिया को अंग्रेजों का जो 90s है वो दोबारा दिखाए।